بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد۔ ہم گزشتہ کلاس میں نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھ رہے تھے، اور اس میں اظہار اور ادغام اور اخلاق کی مشق کرائی گئی تھی۔ لاسٹ کلاس جو ہماری گزری، اس کلاس میں ہم جو ہے اخلاق کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کیے، اور اخلاق کی جو ہے مشق بھی کی، اخلاق کے قاعدے کی، اور یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو نون کی آواز کو میم سے ہم بدل کر پڑھیں گے۔ جس طرح دل ہے اپنی کیفیت میں نہیں رہتا، اس طرح یہ قاعدہ جو ہے بدلتے رہتا۔ کب بدلتا؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد با آنے سے وہ جو نون کی آواز آتی ہے وہ بدل جاتی۔ یہ ہم جو ہے آسان انداز میں اس کو سمجھے تھے۔ آج جو ہمارا سبق ہوگا، آج ہم پڑھیں گے حروف اخفا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب تعریف اخفا دیکھیے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کا نام اخفا ہے۔ اخفا کس کو بولیں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کا نام اخفا ہے۔ اور غنہ کس کو بولتے بولے تھے؟ نون کی آواز کو ناک میں گھمانا، اس کو بولیں گے غنہ۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور دونوں کا بھی تعلق ناک سے ہے۔ ناک میں آواز گھوم رہی تو مطلب وہ غنہ، اور ناک میں آواز جا کے چھپ جا رہی تو مطلب وہ ہے اخفا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے صاحب، حروف اخفا کے حروف جو ہے وہ کتنے ہیں؟ حروف اخفا اظہار اور ادغام اور قلب کے علاوہ جو حروف ہیں، اور الف کے سوا، الف تو چونکہ حمزہ میں شامل ہو جاتا حرکت کی وجہ سے، 15 حروف اخفا کے ہیں۔ اظہار، ادغام اور قلب کے حروف اور الف کے سوا باقی جو حروف ہیں وہ 15 حروف کیا ہے؟ اخفا کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ایک آسان طریقہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں اس میں۔ پہلے یہ دیکھیے حروف اخفا جو ہے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا کے حروف ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھائی صفحہ نظر آ رہا نا یہ آپ کو؟ سلیم صاحب؟ جی منصر. جی۔ اب دیکھیے، ہم پہلے جو قاعدہ پڑھے تھے وہ پڑھے تھے، ہم اظہار کا قاعدہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ساتھ میں یہاں پر پینسل کا آپشن نہیں ہے، میں اس کو نوٹ کر کے بتانے کے لیے خالی یہاں پر سمجھا دیتا ہوں میں۔ اب دیکھیے، ہم جو پڑھے تھے حروف اظہار میں، حمزہ، ہا، دو ہو گئے، اور پڑھے تھے عین اور حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین اور ہا، پھر غین اور خا۔ اس طرح یہ 6 حروف ہو گئے تھے۔ اس طرح ہم جو ہے ادغام میں جو ہے پڑھے تھے یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح ہم حرف قلب میں، اقلاب میں با کو حرف قلب میں شامل کر کے ایک قاعدہ، یعنی 3 قاعدہ پڑھے ہم۔ اس طرح یہ ہو گئے جو مکمل 12 12، اور ایک 6 6، اور ایک ٹوٹل 13 حروف ہو گئی۔ اب بچے کتنے؟ جو بچے وہ اخفا کے ہیں بول رہے۔ تو ٹوٹل میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا، چونکہ ہم الف کو جو ہے حمزہ لگنے کے بعد اس کو حمزہ میں، الف میں شامل نہیں بلکہ حمزہ میں شمار کرتے ہیں اس کا۔ اس طرح حروف تہجی حرکت لگنے کے بعد 29 کے بجائے 28 ہو جاتے بول کے پڑھے تھے۔ تو 28 میں سے اگر ہم 13 نکال دیے تو بچے 15، وہ 15 پورے کے پورے جو ہے حروف اخفا میں شامل ہے۔ اس طرح 28 حروف کے مکمل قواعد تنوین اور نون ساکن میں ہم کو مل جاتے۔ نون ساکن اور تنوین میں مکمل جو ہے 28 جو حروف ہے، حروف تہجی، اس کے قواعد ہم کو مل جاتے، ٹھیک ہے؟ اب وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے تا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف ہیں۔ اب اس کا قاعدہ دیکھیے، قاعدہ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، جس طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار کے 6 حروف آئے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر صاف ظاہر کر کے پڑھ رہے تھے، اس طرح یہاں پر کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، جیسے انتا، انتا، میو ثمرات،
मौकाना उजिला जन्नातियों तजरी। अब यहाँ पर एक वजाहत मैं करना चाह रहा था, इत्तेफाक से यहीं पे यही मिसाल में वो जो है वजाहत मिल जा रही है आपको। ये नून मुशद्दद है देखिए, और नून मुशद्दद में जैसा कि बतलाया गया था कि गुन्ना होगा, नून मुशद्दद में क्या होगा साहब, गुन्ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जन, इस तरह गुन्ना करेंगे नाक में आवाज को घुमा के, और फिर उसके बाद तनवीन के बाद ता आने की वजह से इसमें होगा इख्फा। तो यहां पर क्या करेंगे, त्यों, आवाज को नाक में ले जाके नून की छुपा देंगे। जन्नातियों तजरी, जन्नातियों तजरी, जन्नातियों, जन्नातियों। समझ में आ रहा ना फर्क, इख्फा और गुन्ना का, गुन्ना और इख्फा का फर्क समझ में आ रहा ना फरीद साहब, अलफरीद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही, हाँ मैं हाँ, वही ये समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। समझ में आया ना दोनों का फर्क, गुन्ना और इख्फा का। जी जी जी। जन्ना त्यों, जन बोल के आवाज को हम जो नाक में घुमा रहे हैं ये है गुन्ना, और जो नून की आवाज को यहाँ पर इख्फा में छुपा रहे हैं वो है इख्फा। त्यों, त्यों, ये इख्फा। थोड़ी सी मश्क इसकी जो है हम इसमें कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। खायदा समझ में अगर नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से समझा देता हूँ, समझ में आया तो फिर मश्क की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखिए साहब, यहाँ पर हुरूफ इख्फा की मिसालें हैं, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसा हुरूफ इख्फा को। अब वो तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ गया तो हम यहाँ पर इख्फा करेंगे, यही पहचानने का तरीका है। उससे पहले इख्फा के हुरूफ हमको अच्छे से याद होना जरूरी है। इख्फा के हुरूफ अगर याद नहीं हुए तो फिर कायदे में गड़बड़ होती, कायदा समझ में नहीं आने की वजह से हम क्या करते, पढ़ने के दौरान क्या करते, हम वो इख्फा नहीं करते वहां पर, जिस वजह से वो कायदा जो है अप्लाई नहीं होता, वो अदा नहीं होता। तो पहले जो है, अब साहिब अच्छा हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक हजरत की कब्र अनवर, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप यहाँ देखे, यहाँ पर जो मिसालें लिखे ना हजरत, जिस तरह तरतीब है ना, वही तरतीब के एतबार से पूरे मिसालें जो है हजरत यहाँ पर तहरीर फरमाए। ता सा, ता, ये सा, उसके बाद जीम, ये दाल, ये जाल, नहीं, ये जा, ये सीन, ये शीन, ये साद, ये दाद, ये ता, ये गा, ये जो है फा, ये काफ, ये काफ। जो मिसालें हजरत जो है यहाँ पर दिए हैं, वो पूरे जो है जितने हुरूफ है, हर हर्फ की जो है हजरत मिसाल पेश फरमाए। हर हर्फ की मिसाल मिल जाती है हमारे को, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं भाई, वो 4 हुरूफ के मिसाला है, बाकी के मिसाला नहीं है ना, बोले सरकार नहीं है। आप देखिए दूसरे जो किताबें हैं, बिल्कुल 6 या 8 मिसालें लिखी हुई है हुरूफ इख्फा की, और यानी 15 में से आधे हुरूफ की मिसालें हैं। आधे हुरूफ की मिसालें अपन खुद ढूंढ लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। मगर हजरत किबला क्या करे कि तमाम की तमाम मिसालें यहाँ पर किताब में दे दी, आप देख के जो है इसको समझ जाना, आप देख के जो है इसको अदा करना, आपकी मश्क हो जाना वो। बहरकफ हम जो है अब यहाँ से पढ़ने का आगाज करेंगे, एक एक लाइन एक एक जने पढ़ते जाइए ताकि ये सबक आज का हमारा मुकम्मल हो सके। आओ तुम, आओ इख्फा, तुम बिना कलखला, चूंकि मीम साकिन का कायदे हम पढ़े नहीं, इंशाल्लाह हम आइंदा क्लास में जब पढ़ेंगे तो मीम साकिन के कवायद जो भी पढ़ेंगे हम उसके एतबार से कायदा बोलेंगे। इस तरह मियो समारतिन, मियो, नून साकिन के बाद सा आने की वजह से इख्फा, सा मुतहरिक, मा मुतहरिक, रा मुतहरिक, 3 तनवीन। फ़अजयनाकुम, फा मुतहरिक, औ इख्फा, नून साकिन के बाद जीम आने की वजह से यहाँ पर जो है इख्फा होगा। फिर जई, या साकिन से पहले जबर आने की वजह से यालीन, ना मद्दे हुक्मी, कुम बिना कलकला। वदहुम, वदहुम, वा मुतहरिक, इख्फा, नून साकिन के बाद दाल आने की वजह से इख्फा, और हुम बिना कलकला।
इस तरह आसानी से आप अदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो खाली हर्फ का कायदा परसों की क्लास में आपको बताया था। देखिए, जिस हर्फ पर कोई हरकत ना हो उसको हम नहीं पढ़ेंगे बोले। अब यहाँ पर अलिफ से पहले जबर आ रहा, रा, अलिफ मत का कायदा होता, लेकिन इसके बाद मुशद्दद हर्फ आ रहा ना, तो जाल को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मुशद्दद हर्फ से मिलाएंगे। ये मुत्तहरिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा के जो है कायदे को हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। मौज़ल्लज़ी पढ़ेंगे, लाल्लज़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, कोई पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं तो इसको सुना दीजिए। पहला लाइन पढ़ दो। मा- जी सैयदा साहब, आप पढ़ लीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा ज़ल्लज़ी, जी, मा इख्फा, ذا متحرك، لا مشدد، ذي या मद, देखिए وأنزل। आपको याद होगा ना वो हुर्फे शमसी का कायदा, आपको याद होगा, अभी पढ़े तो नहीं अपन क्लास में, मगर आपको याद है ना। नहीं नहीं याद है मुझे सब। हाँ, हुर्फे शमसी, वश शमसी उसकी मिसाल है। देखिए, हुर्फे शमसी मुशद्दद हर्फ से पहले का जो हर्फ होता, उसमें क्या होता, वो नहीं पढ़े जाने वाला हर्फ रहता। मैं आगे उसकी जब सबक आएगा मैं समझाता हूँ आपको। मुख्तसार के साथ बोलना ये है कि जल में शमसी का कायदा होता, चूंकि हम शमसी नहीं पढ़े इसीलिए उसको हम मुशद्दद या मुत्तहरिक बोल के फिल वक्त हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, इतना ही। जी। أنزل थोड़ा सा इख्फा और करिए, हमजा। गुन्ना और इख्फा की मिकदार दो हरकत के बराबर, यानी एक अलिफ के बराबर है। أنزل همزة متحرك، إخفاء، زي متحرك، لا متحرك، इसको हम تان हम आ पढ़े उसको तो आइज बोलेंगे कायदे में। جيمز، تنسون، تن إخفاء، صو واولين، نون نا متحرك، जी أنشأكم، जी إخفاء، شا متحرك، متحرك، كم بغير خلخلة. जी, पढ़िए अल्फाज साहब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनसल अन सलातिहिम, अन इख्फा, सा मुतहरिक, ला मुतहरिक, ती मुतहरिक, हिम मिम मिम हिम। एक मिनट, यहाँ पर अलिफ से पहले जबर आया ना, तो यहाँ पर ला अलिफ मत बोलेंगे, ला अलिफ मद, ऐसा। ला अलिफ मद, ती मुतहरिक, हिम मीम लेन। हिम, बिना कलकला। जबरदस्त माशाल्लाह। बिना कलकला। मिन दारिहिम, मिन दारिइन। नहीं, आप देखिए, एक जहन में रखिए कि जहां पर भी जबर जेर पेश यानी हरकत वाला हर्फ हो, यानी मुतहर्रिक हर्फ हो, हम उसको जल्दी पढ़ना, ये कायदा जहन में रखिए आप, तो गलती नहीं बिल्कुल। होती। वात पे सिर्फ हरकत है ना, जबर है, तो ये जबर को नहीं खींचना है हमको। या साकिन से पहले यहाँ पर जेर है, मतलब क्या, कि यहाँ पर दारी क्या मद है, खींचना तो है। यहाँ पर थोड़ा खींचना है, क्या? ये ध्यान में रखिए। मिन दरीइन, मिन दारिइन, नहीं, मिन में इख्फा करिए ना। मिन दारिइन, मिन दरीइन। मिन दारिइन, हम्म, मिन इख्फा, दा मुतहरिक, री या या मद, इन तनवीन। जी, मिन ती तीनिन, मिन तीनिन, तीनिन। तीनिन, मिन इख्फा, ती नहीं, आप फिर एक मरतबा पढ़िए उसको। मिन तीनिन,
من طين من طين. من طين. हाँ. من إخفاء. ت- ती तोई या मद निन तनवीन. हमारे सलीम साहब, आप पढ़ेंगे क्या एक लाइन? खालिद साहब, मैं आज म्यूट पे रहता हूँ, थोड़ा वो चल रही हाँ, तैयारी, फंक्शन इसलिए में है थोड़ा नहीं? हाँ हाँ, गड़बड़ी है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, मैं अच्छी बात क्लास है। नहीं छूटना बोल के मैं थोड़ा ज्वाइन कर लिया। नहीं नहीं, अच्छा करे, अच्छा करे। मैं इब्तिदा में बोला था, आपको याद होगा, वो मेरे को जो है जलसे में जाना है, तो उस वजह से हमारे फरीद भाई भी इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, बोले वहाँ पे। आप आ रहे हैं ना वहाँ पे फरीद साहब? जी इंशाल्लाह। हाँ, उसका पता वगैरह तो मालूम है आपको। तो आप आइए। सिकंदराबाद रेलवे हाँ, स्टेशन के स्टेशन के पास बाजू मदीना में मस्जिद है। मस्जिद। मगर मैं आपको नहीं देखा, आप आके मिल लेना पड़ता घर से। हाँ हाँ। लेकिन देखता हूँ मैं 12 बजे तक रुकूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। हाँ, जैसा भी हो, मैं दस भी थोड़ी देर में निकलता दस- हूँ इंशाल्लाह, क्लास खत्म होने के बाद घर जाके फ्रेश होके निकल जाता हूँ मैं भी इंशाल्लाह। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो 12 तक रुकूंगा ऐसा बोल रहा हूँ। मैं तो अभी निकलूंगा, 10 बजे तक पहुंचूंगा, तो दस आप बारह साढ़े एक बार। 10 12 बजे, 12 बजे तक निकलते हो ना हम्म। घर से? नहीं नहीं नहीं, घर से नहीं, मतलब इज्तिमा इज्तिमा मतलब हाँ कितना, 1 बजे तक चलेगा शायद, मैं हाँ, 12 बजे 2 बजे तक ही तक रुकूंगा। चलेगा, उम्मीद है वैसी। मगर हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, वहां पे आने के बाद आप मुलाकात करते बोले तो मैं तो आपको नहीं देखा ना, तो हाँ हाँ, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो मैं, अच्छा एक लाइन आप सैयदा साहब आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे आज की क्लास को एक लाइन ले लेके। जी تنظرون. जी। تن إخفاء ذو متحرك. رو واو مد. نو نا متحرك. من فضل. फद्दू बोले तो कलकला हो जाता, पद बोल के आवाज को दबा देना वही, من فضل. ऐसा। من إخفاء قاد بغير خلخلة لين تنوين. من قارن. फिर एक मरतबा बोलिए। من قارن. कारू बोले तो फिर कलकला हो जाता, मीन कर नीन कर नीन। मैं इख्फा का من एक कायदा बताया था, देखिए। قرن. मैं कलकला का एक कायदा बतलाया था, जहां पर कलकला होता वहां पर हम क्या करते, जैसा कि हमजा बा जबर अब, अब मखरज की जगह से जबान पहले हटाते, बाद में आवाज खत्म करते। और जहां पर जी कलकला नहीं होता वहां पर क्या करते, अब आवाज पहले खत्म करते, बाद में जबान को अपनी हटाते मखरज की जगह से। आप ये जहन में रख लिए तो सहूलत हो जाती है। मियं जी. कर नीन, इस तरह। من قرن. जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक। من إخفاء قار بغير خلخلة نين تنوين. منكم. من إخفاء كم بغير خلخلة. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह आइंदा क्लास हम जो है थोड़े से और मिसालें हैं इसके, यहाँ पर मिले जुले मिसालें हैं। यहाँ पे जो है इजहार की भी मिसाल है, इकलाब की भी है, इदगाम की भी है, इख्फा की भी है। तो ये मश्क आपको जो है जबरदस्त तौर पे करना है, और आइंदा क्लास में हम इसको सुनेंगे इंशाल्लाह। आइंदा क्लास जब हमारी रहेंगी, पहले ये मिसालें सुनेंगे, फिर उसके बाद मीम साकिन के अहकाम हमको पढ़ना है। मीम साकिन के अहकाम, मीम साकिन के 3 अस्सलाम कायदे। वालेकुम मुसब. जी वालेकुम अस्सलाम। मुसब हुरूफ शम्सी और हुरूफ क़मरी इसके बाद बोलते हैं आप? नहीं आता सबक को, हल्लो हल्लो आएगा जी ना, सब मुसब. सबक आएंगे ना, हल्लो हल्लो आहिस्ता आहिस्ता। जी. तो ये देखिए साहब, ये आपको जो है तनवीन की मिसालें इसमें है। अब यहाँ पर असल में नून साकिन की मिसालें थी, देखिए यहाँ पर अब जितनी मिसालें पढ़े ना, ये सिर्फ नून साकिन की मिसालें थी, नहीं। अब इसके बाद हजरत क्या करें, अब तनवीन की मिसालें लिखे, देखिए। फिर वही है, फिर ता सा जीम दाल गाल जा सीन शीन सौद दौत तौ ज़ा फा कौफ काफ। देखिए आप कितनी मेहनत की है हजरत जो है इसको जमा करने के लिए।
नून साकिन की मिसालों को अलग जमा किए, तनवीन की मिसालों को अलग जमा किए। दीगर किताबों में जैसा कि अभी बोला मैं, 4 मिसालें तनवीन के लिखते, 4 मिसालें नून साकिन के, उसी को लिख दे के खत्म कर देते। लेकिन हजरत जो है इतना फैजान अपना जो है पहुंचा के रखे उम्मत के लिए कि बस समझ के हमको जो है पढ़ने की जरूरत है इसको। तनवीन वो नून साकिन की मिसालें थी, ये तनवीन की मिसालें। ये मिसालें हम अच्छे से समझ लेने के बाद इसकी मश्क जो है आप लोग जो है करते रहिए। पेज नंबर 34 की अच्छे से मश्क कर लीजिए। अब यहाँ पर चारों कवायद की मिसालें हैं, इसकी मश्क कर लेंगे 35 तक, यहाँ तक। तो फिर जो है हम फिर उसके मीम साकिन के अहकाम आइंदा सबक में पढ़ेंगे, मगर पहले से इसकी मश्क कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है ना। छुट्टी के दिनों में जो है इसकी मश्क कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर आइंदा क्लास में हमारी जो है मुलाकात होगी। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को सही सही बातरीत कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान को पढ़कर उसको समझने वाला बना दे, समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला कुरान पर हमको अमल करना आसान फरमा दे। इलाही आलमीन कुरान के नूर से हम सबको मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। इलाही आलमीन मौला परवरदिगार आलम कुरान के सदक़े मौला हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। इलाहुल आमीन कुरान के सदक़े मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आमीन मौला तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह फिर आइंदा क्लास में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।